Good morning to all of you. Very less students are joined today. Am I audible? Hello. Am I Yes, audible? Okay. So इतने कम students क्यों join हैं आज? ठंड आ गई सो रहे हैं शायद। Okay. So in last class, I think before Diwali, we discussed about the hardware and software parallelism, right? But I thought you all are forget what I am telling you. So okay. Okay, so and software parallelism we discussed. Okay. So you all are aware about the parallelism, why this parallelism we are using and what is parallelism. So when we are performing more than one task at a time, so this is the situation of parallelism. Okay, so means performing more than one task at a time. Right? Why we are using performing more than one task at a time? Because we have to speed up the process which we are performing, which we are processed, and it is also means if we performing more than one task at a time, so it will also machine work will take less time, or this instruction is means number of instruction we can perform, or we can perform the number of instruction, and also we can reduce the cost of the work, or the system of the work system which we are designing or which we are processing. Okay, so basically this modern computer architecture required hardware and software parallelism. This is called spatial hardware and software parallelism. Okay, so in conventional computer, in conventional computer, we required one cycle of the instruction to perform the instruction cycle. So one means one instruction required one cycle to complete the instruction execution. But when we perform the more than one instruction at a time, so we require the number of cycles more than one. Okay, in uh, hardware or hardware parallelism or software parallelism. Okay, so we discussed this for the implementation of parallelism, we required a special hardware and software support, and this compilation support is also needed to close gap between the hardware and the software. Okay, so first we discuss the hardware parallelism, and then we discuss the software parallelism. So what is hardware parallelism? So hardware parallelism means we just listen the name hardware, we recall that hardware is nothing but we can touch and feel the machine, right? So hardware is just like a machine which we are used, which we can touch, we can feel is also.
ठीक है. So hardware parallelism basically defined by the machine architecture and hardware multiplicity. These two terms we are already discussed in previous. So what is hardware parallelism? We can define hardware parallelism by machine architecture and hardware multiplicity, right? So this hardware parallelism is also a function. Okay, so we can define machine architecture and hardware multiplicity, and it can be characterized, or you can say it can be designed by the number of instruction that can be issued per machine cycle. Okay, means if we are designing a uh, machine or a system, okay, so or the design of hardware multiplicity, so through number of instances, how many number of instruction that can be issued per machine cycles. ठीक है, सपोज हम कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, या तो हम उसमें हार्डवेयर पैरालिज्म का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो थ्रू हार्डवेयर, अगर हमें हार्डवेयर पैरालिज्म यूज करना है, हार्डवेयर पैरालिज्म को डिजाइन करना है, तो हम कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो उस मशीन साइकिल्स को हम इशू कर रहे हैं पर मशीन साइकिल। मींस अगर हमारे पास सपोज 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो वो 10 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगी? 10, बिकॉज ईच इंस्ट्रक्शन टेक वन साइकिल इंडिविजुअली. ओके, okay, now up this hardware parallelism, we can display the hardware parallelism, the resource utilization pattern of simultaneously executable operation. ठीक है, अब so in this hardware parallelism में हम क्या करते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उनका हम जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, हम उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? उनकी जो रिसोर्स जो यूटिलाइज कर रहे हैं, वो जो रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उनका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैटर्न होता है, वो जो हमारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली जो हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होता है हो रहे हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, उनको डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द पीक परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसर रिसोर्सेस. ठीक है, अब प्रोसेसर रिसोर्सेस हम जब डेटा डिपेंडेंसी हम जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने वहां पर रिसोर्सेस कैसे वर्क करेंगे वो हमने बताया था. ठीक है, तो हमारा जो हार्डवेयर पैरेललिज्म है वो क्या इंडिकेट करता है? हमारा परफॉर्मेंस. किसका परफॉर्मेंस? हमारा जो भी हमारे प्रोसेसर रिसोर्सेस है उनका पीक परफॉर्मेंस भी ये इंडिकेट करता है. कौन? हार्डवेयर पैरेललिज्म. ओके, ठीक है. सो इन फॉर मशीन डिजाइनिंग और फॉर मशीन आर्किटेक्चर वी कैन यूज के इंस्ट्रक्शन पर मशीन साइकिल. ठीक है, जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो हम उनके लिए n नंबर ऑफ साइकिल्स इशूड करते हैं, दैट इज कॉल्ड k और n issues processor. ठीक है, अगर if we are using a one instruction, तो we issued one cycle. If we uh, issue two processor or two instruction or three processor or three instruction, we call two issued processor, three issued processor, four issues processor, like. ठीक है, so basically this conventional processors जो होते थे, conventional processor are our one instruction machine because each instruction take one cycle. Okay, but in modern processor, ठीक है, two or more than two instruction can be issued per machine cycle. ठीक है, तो in modern computer what we can do, we can perform two instruction or more than two instruction at a time. So that is we are calling two issued or three issued per machine cycle. Okay, so how we can say that this is two machine or three machine, like. ठीक है, so if we are talking about the this three issued processor. ठीक है, so example is what three issued processor. So Intel one sorry i960. ठीक है, this is a three issue processor. ठीक है, so three issued processor is what? First is your arithmetic operation, second is your memory access,
and third is your branch conditions. Okay. So like this three issue processor, what operation or what cycle will perform a process. So one cycle is for arithmetic, one cycle is for a memory access, and one cycle is for branch condition. That's why we are calling this three issue processor. Okay. Like your IVM 6, IVM RS6000, these all are the example of hardware parallelism. Okay. So this is a 4-issue processor. Okay. 4-issue processor. So in 4-issue processor, for one cycle is for arithmetic, second cycle is for floating point, third is your memory access, and fourth one is your branch. Okay. So according to machine architecture requirement, we issued this like K issues processor, 2 issues processor, 3 issues processor, 4 issues processor, like that. Okay. So this is a hardware parallelism. The next one is software parallelism. So software parallelism is what? So basically, software is nothing we cannot touch, we cannot feel, but we can uh, uh, our machine will be work with the combination of hardware and software. So as well as if hardware is required, so as well as we required software is also. Okay. So both hardware and software are required. So software parallelism we can define by control and data dependence of program. Okay. What is control and data dependence? So we already discussed in previous classes when we are discussing parallelism conditions. Okay. So we discussed what is data dependence, types of data dependence, resource dependence, okay, control dependence. So control dependence are basically used in our programming, right? Our branch conditions, conditional statement. So this software parallelism we can define by control and data dependence of program. Okay. And we can also show the program's flow graph. Okay. So when we are designing a data dependence, resource dependence, and control dependence, so we make a resource dependence graph between all the instruction, all the statements. Okay. So this concept is followed in my software parallelism. Okay. So basically, the software parallelism is a function of algorithm, programming style, and compiler or optimization. Okay. So when we are talking about the software, we are writing a software in any programming style, and we can execute this in this program according to the requirement of our system or our software. So what we will do, we will design a we will write a program, we will make an algorithm, we can choose the programming style, and after this writing or writing program or algorithm, we will execute the program. So we require a compiler optimization. Okay. So these all are the function of our software parallelism. Okay. The program flow graph display the pattern of simultaneously executable operations. Okay. So here we are using a program flow graph. Okay. Okay. So this program flow graph, what will display? How the program will be executed, how the instruction will be executed one by one, or it will show the pattern of this executable operations. Okay. So this parallelism in a program varies during the execution of period. So when we are executing the software which we are designing, when or we are executing the program, or when we are executing the algorithm, so during the execution of period, we can this program this software parallelism will be vary. Okay. So this is the whole concept of hardware and software parallelism. Okay. How can we find out the difference between the hardware and software parallelism? How we can mismatch the software and hardware parallelism? How we can match this hardware and software parallelism? Okay. So this is the three points we will discuss one by one. So first we will discuss mismatch between the software and hardware parallelism. Okay. So for hardware and software parallelism, we required load
load instruction and multiplicities instruction. Okay, so we are taking a one example to understand the hardware and software parallelism one by one. So now I am taking an example. Example is what? A is equal to L1 into L2 plus L3 into L4, and is B is equal to L1 into L2 minus L3 into L4. Okay. So what is this? We are discussing mismatch between software and hardware parallelism. Okay. So this L1, this is load instruction. Okay. So we required 4 load instruction L1, L2, L3 and L4. Okay. These L is indicate your load. Okay. So we required 4 load instruction. Okay. 1 add instruction, 1 addition instruction, 1 subtraction instruction, and 2 multiplication instruction. Okay, so okay, so first one is your software parallelism. Okay, so what we are saying, in cycle 1 we are loading instruction L1, L2, okay, and L3, L4. Okay, these 4 load instruction are loaded in cycle 1 and they perform the multiplicity instruction. So L1 multiply L2, okay, L1 multiply L2 and L3 multiply L4. ठीक है, सो हमारा एग्जाम्पल क्या था? L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस L3 मल्टीप्लाई L4. ठीक है, तो L1 L2 का मल्टीप्लीकेशन किसमें किया आपने? ये मल्टीप्लीकेशन किया, आप इसे बोल रहे हैं मल्टीप्लीकेशन 1. L3 L4 का जो मल्टीप्लीकेशन किया, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन 2 मींस. ठीक है, देन अब हम क्या कर रहे हैं, इन 4 लोड इंस्ट्रक्शन को, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था हम उसमें क्या करवा रहे हैं? एडिशन करवा रहे हैं, सेकंड में हम सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, राइट? तो what we will do, we will perform addition. ठीक है, किस किस का? x1, ये ठीक है. सो इनका जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो किसमें आया है आपका? ये आपका x1. ठीक है, तो L1 L2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम क्या करवाएंगे? एडिशन करवाएंगे. किसके साथ? L3 L4 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके साथ. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ. सिमिलरली हम क्या करवा रहे हैं? इनका सब्ट्रैक्शन भी करवा रहे हैं, राइट? L1 L2 मल्टीप्लाई प्लस L3 L4. ठीक है, L1 L2 मल्टीप्लाई माइनस L3 L4. ओके, सो ये हमारा क्या है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर पैरालिज्म हुआ. अब यहाँ पर हमारे साइकिल्स अगर आप देखें तो फन साइकिल, दिस इज योर वन साइकिल, दिस इज योर सेकेंड साइकिल एंड दिस इज योर थर्ड साइकिल. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी कितनी लग रही है यहाँ पर? सॉरी 1 2 and 3. दिस इज योर ए के अंदर आपका रिजल्ट स्टोर हो रहा था ये वाला, एंड दिस इज योर बी के अंदर आपका रिजल्ट हो रहा था ये वाला. ठीक है, तो ए के अंदर आपका था L1 L2 प्लस L3 L4, एंड बी के अंदर था L1 L2 माइनस L3 L4, राइट? ठीक है, सो जो L है आपके, वो L क्या है आपके?
लोड ऑपरेशन है जो भी आप लोड करवा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, एंड जो x1 x2 जो आप यूज कर रहे हैं ये क्या है आपके मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशंस है। ठीक है, तो L1 x1 ये आपके लोड एंड मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशंस है। अब ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे कितने यूज हो रहे हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने यूज हो रहे हैं आप, तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे 4 इंस्ट्रक्शन थे, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे 4 इंस्ट्रक्शन थे, तो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे कितने यूज हो रहे हैं 8, राइट। तो यहाँ पर हमारे टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी यूज हो रही हैं, इंस्ट्रक्शन एंड यहाँ पर हम साइकिल करते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी कितनी यूज हो रही है, 3 साइकिल्स यूज हो रही है, बिकॉज हम जो इंस्ट्रक्शंस को जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोड करवा रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं उनके ऊपर, फिर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को लोड करा दिए, सेम इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जो हमारा एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, तो हमें बार बार उसे लोड नहीं कराना है सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म को। ठीक है, लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, वहां पर जब आप इंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर हम किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियली इनिशियलाइज कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं, हमें उनको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर हमने 4 इंस्ट्रक्शन लिए, उनको लोड करवाया इनिशियल फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड में हमने क्या करवाया, मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, देन हमने क्या करवाया, उन स्टेटमेंट पर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे वो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर परफॉर्म करवाया। उनके लिए जो वैल्यूज चाहिए, लाइक जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम यहाँ से ऊपर से हम उनको जो भी इंस्ट्रक्शन लोड हुए थे, मल्टीप्लाई हुए थे, मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन थे, हम वहां से उन्हें ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी क्या लग रही है, 3 लग रही है। अगर हमें यहाँ पर एवरेज सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म फाइंड आउट करना हो, लाइक एवरेज सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म, ठीक है, तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइकिल, तो इट इज राउंड ऑफ 2.67 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल आपका आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक एवरेज मिले, एवरेज हमारा जो सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म है उसकी एक एवरेज वैल्यूज हमें फाइंड आउट होगी जो अराउंड 2.67 होगी, राइट। सिमिलरली अगर हम हार्डवेयर पैरेललिज्म की बात करते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म था। हार्डवेयर पैरेललिज्म अगर हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो हार्डवेयर पैरेललिज्म के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को, तो हमारे इंस्ट्रक्शन कौन से हैं, L1 L2, 2 इंस्ट्रक्शन हमने सबसे पहले क्या किया, लोड किया। सबसे पहले लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उनके ऊपर L1 L2 का क्या कर रहे थे, हम L1 L2 का हम मल्टीप्लीकेशन करवा रहे थे, राइट। तो आपने सबसे पहले L1 लोड किया, ये आपका साइकिल 1 हुआ, L2 लोड किया, ये आपका साइकिल 2 हुआ। अब आपने इन L1 एंड इस L2 का क्या करवाया, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया। ठीक है, दिस इज योर साइकिल 3 जहां पर आप करवा रहे हैं, एंड सेम टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, एक और जो आपका इंस्ट्रक्शन है L3 उसे लोड कर रहे हैं, देन आपने L4 को लोड किया, दिस इज योर साइकिल 4। ठीक है, जैसे ही आपने L3 एंड L4 को लोड कर दिया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारा किसमें होगा, साइकिल 5 में। ठीक है, सेम टाइम पर अब आपने ये साइकिल 5 में ये आपने मल्टीप्लिकेशन करवाया और आपका ये साइकिल 5 है, सेम टाइम पर आप क्या करेंगे, लोड करवाए आपने लोड जो क्योंकि आपका, मैम यस मैम जो अभी मल्टीप्लिकेशन कराया L1 एंड L2 में, तो वो साइकिल 3 में होना चाहिए ना शायद। आप सारी चीजें जब अलग अलग साइकिल में जा रही हैं तो ये साइकिल 3 में आपका हुआ,
ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का L1 L2 का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ वो साइकिल 3 में आया, साइकिल 3 में ही सेम टाइम पर जब मल्टीप्लीकेशन हो गया तो हम लोगों ने सेम टाइम पर सेम साइकिल के उस पे हम लोगों ने एक और इंस्ट्रक्शन L3 उसे लोड करवाया है। दिस इज योर साइकिल 3। ये सारा जो प्रोसेस है वो आपका L3 साइकिल में हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ये साइकिल 3 है। ये L1, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये आपका L1 है, ये आपका साइकिल 1 है, ये आपका L2 है, ये आपका साइकिल 2 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाया। ठीक है, ये आपका साइकिल 3 हो गया। सेम टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, एक और इंस्ट्रक्शन जो है हमारा उसे हम लोड करवा रहे हैं L3। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारी एक सेम टाइम पर हो रही है, लोडिंग एंड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, क्यों हो रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग अ टू प्रोसेस, टू इशू प्रोसेस मीन्स कि जो हमारे एक साइकिल में हमारे टू इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हम उन्हें टू प्रोसेस उन्हें अलोकेट कर रहे हैं। लाइक एक मिनट मैं आपको बुक में बताती हूँ, इसमें हो सकता है इसमें आपको अच्छे से समझ में ना आया रहा हो। ठीक है, ओके, दिस डायग्राम इज विजिबल नाउ, विजिबल है सभी को, ये बुक का डायग्राम है। विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो तो ये देखिए, ये मैंने अभी आपको जो बताया था सॉफ्टवेयर पैरालिज्म का आपको डायग्राम बताया था कि साइकिल 1 साइकिल 2 साइकिल 3 ये जो है इस टाइप से आपके जो सॉफ्टवेयर पैरालिज्म है परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब हार्डवेयर पैरालिज्म में ये देखिए, आपका साइकिल 1 में हमने क्या किया, फर्स्ट जो हमारा लोड इंस्ट्रक्शन था उसको लोड करवाया L1 को, सेकंड में हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन को लोड करवाया L2। ठीक है, साइकिल 2 थर्ड साइकिल में हमने मल्टीप्लिकेशन करवाया L1 एंड L2 का, दैट इज इट कंटेन X1 द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, वी परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन एट द सेम टाइम वी आर लोडिंग द इंस्ट्रक्शन L3। ठीक है, तो ये जो लोडिंग है और ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन है ये हम एक साथ परफॉर्म करवा रहे हैं साइकिल 3 में। एंड क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग अ टू इशू प्रोसेसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंगल मतलब वन इशू प्रोसेसर का यूज कर रहे थे, इसलिए हम सिंगल सिंगल ऑपरेशन हर एक लाइक उसमें यूज कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में यूज किए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में हम क्या कर रहे थे, मल्टीपल हम ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम आप बोल सकते हो कि ये आपका मोर देन वन इंस्ट्रक्शन वन इशू प्रोसेसर है यहाँ आपका। ठीक है, बिकॉज आप 4 इंस्ट्रक्शन को एक साथ लोड करवा रहे थे एंड ये 4 इंस्ट्रक्शन जब लोड हो रहे हैं तो वो हमारा क्या काउंट हो रहा है, एक ही साइकिल काउंट हो रहा है। ठीक है, एंड उन ऑपरेशन पर जब आप मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, ठीक है, वो हमारा साइकिल 2 काउंट हो रहा था। ठीक है, मतलब एक ही साइकिल काउंट हो रहा था, बट उसमें भी आप क्या करवा रहे थे, 2 ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पर साइकिल 1 हमने सबसे पहले लोड करवाया, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को लोड करवाया, सिंगल सिंगल लोड करवाया। ठीक है, देन हम उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे हम उसमें, इंस्ट्रक्शन को लोड भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका साइकिल 3 है। नेक्स्ट है साइकिल 4, साइकिल 4 में हमने सेकंड फोर्थ जो इंस्ट्रक्शन है उसको लोड करवाया। नाउ अब नेक्स्ट जो फिफ्थ साइकिल होगी उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन जो आपकी इंस्ट्रक्शन L3 एंड L4 है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, वो क्या हुआ आपका साइकिल 5। अब जब जैसे ही हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो उसके साथ हम क्या करेंगे, अब आपका साइकिल 5 हो गया आपका, मतलब L1 L2 मल्टीप्लिकेशन L3 L4 ये कंप्लीट हुआ है। अभी उसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, राइट। तो अब हम यहाँ पर जो भी इनका रिजल्ट होगा, लाइक यहाँ पर L3 L4 का मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, X1 X2, या आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन 1 एंड मल्टीप्लिकेशन 2। ठीक है, तो अब हम इनके लिए क्या करेंगे, इन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमने X1 का जो वैल्यू है मींस L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाया, उसमें हमने क्या करवाया, L3 एंड L4 को इंसर्ट करवाया। ठीक है,
तो ये हमारा साइकिल क्या होगी 6, जिसमें हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे एंड जिसमें हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, दैट इज अवर 7 साइकिल। तो यहाँ पर ये x2 एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो x1 है ये, तो x1 और x2 में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन टू जो है उसमें हम सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। एंड इसका जो रिजल्ट्स है ए एंड बी, जो हमारे स्टेटमेंट्स थे ए एंड बी, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारे यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। एक ही प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, L1 मल्टीप्लाई L2 प्लस L3 मल्टीप्लाई L4। एंड साइकिल 7 में हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था वो हमारी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, L1 मल्टीप्लाई L2 माइनस L3 मल्टीप्लाई L4, ठीक है। और उनके रिजल्ट्स कौन होल्ड करते हैं, ए एंड बी उनके रिजल्ट्स को होल्ड कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 लग रही है। एंड सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म में सेम प्रोसेस हमारी परफॉर्म हो रही है, बट इट विल टेक ओनली 3 साइकिल और 3 स्टेप, ठीक है। So this is the difference between the hardware and software, because when we are talking about a hardware or a machine, ठीक है, तो आप देखेंगे एक मशीन को जब हम डिजाइन करते हैं तो we require a different or small or a big element for designing. Like अगर हम सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो हमें हार्डवेयर के लिए चिप भी चाहिए, हमें मदरबोर्ड भी चाहिए, हमें माइक्रो प्रोसेसर भी चाहिए। तो हम उनको इंडिविजुअली अलग अलग हम क्या करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं, उनको हम सेट करते हैं, उनको डिजाइन करते हैं हम अपने सिस्टम में, ठीक है। तो उस अगर हमें साउंड सिस्टम चाहिए तो उसके लिए भी हम डिजाइन करते हैं, हमें डिस्प्ले के लिए चाहिए, हमें अगर हमें ऑडियो वीडियो चाहिए, हमें प्रिंटर कनेक्ट करना है, तो हम अब हमारे लैपटॉप में हमारे सिस्टम में हर एक पोर्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट जब हम इसे डिजाइन करते हैं तो हर एक पोर्ट को हमें इंडिविजुअली अलग अलग डिजाइन करना होता है। समटाइम्स हम बहुत सारी जो डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें हम 2 प्रोसेस को एक साथ कर सकते हैं, या किसी को हम इंडिविजुअली लोड करते हैं, और अगर उसका फंक्शन किसी और में भी है तो हम उसको पैरेलली डिजाइन करते हैं या यूज करते हैं। तो सिमिलरली जो देख रहे हैं आप यहाँ पे मल्टीपल साइकिल्स हमने यूज किए, तो कभी कोई इंस्ट्रक्शन अकेला लोड हो रहा है, कभी किसी स्टेप में आप साइकिल में आपका लोड भी हो रहा है और उसके साथ ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि हमें जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम पहले क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, लाइक जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं एंड उनके ऊपर कौन से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उनका रिजल्ट हमें किस में स्टोर करना है। तो जो भी हम हार्डवेयर है उसके लिए हम डिजाइनिंग करते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा रेडी होता है, राइट। तो अब हार्डवेयर को अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हार्डवेयर के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमें इंडिविजुअली और पैरेलली चेक करना रहता है और उन्हें उस अकॉर्डिंगली हमें इंस्टॉल करना रहता है, पोर्ट करना रहता है। बट सॉफ्टवेयर में हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स इसलिए लेस लगती है बिकॉज हम उनमें डिफाइन करते हैं, और जो भी हमारे मशीन्स हैं तो उनके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनका रिजल्ट हमें किस में स्टोर करवाना है, उनको कैसे रिलेट करना है, तो वो हम प्रोग्रामिंग स्टाइल से करते हैं। तो इसलिए हमारी वहाँ पर प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी हमारी डिजाइनिंग होती है उसमें हमारी नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ स्टेप्स बोलते हैं, आप बोल सकते हैं, वो हमारी इसमें रिड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो एक मिसमैच भी है अगर आप देखें तो। ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में मिसमैच क्या है कि यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे 3 साइकिल्स लग रही हैं, हार्डवेयर में हमारी 7 साइकिल्स लग रही हैं। यहाँ पर हम 2 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम 1 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, कहीं पर हम 4 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर आप देखिए 4 इंस्ट्रक्शन को हम लोड करा रहे हैं तो 4 प्रोसेसर्स मतलब 4 इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साइकिल में। कहीं पर हमारे एक साइकिल में सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, कहीं पर हमारे 2 इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पैरेललिज्म है, इनमें क्या है, मिसमैच है। अगर अब हमें मिसमैच को रिमूव करना है, लाइक हमें कोई मैचिंग प्रोवाइड करवानी है कि बिकॉज व्हेन वी आर डिजाइनिंग एनी सिस्टम, एनी मशीन, तो वी रिक्वायर्ड हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वी हैव टू प्रोवाइड अ मैच बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, जो भी हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म है उनमें हमें एक मैच प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है। अब मैच हम किसके थ्रू कर सकते हैं, यूजिंग ड्यूअल प्रोसेसर सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो ड्यूअल प्रोसेसर सिस्टम का यूज करके हम क्या करेंगे, जो भी हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जो मिसमैच था उसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में एक मैच प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता है L&S लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस है हमारे, ठीक है। एक्स जो इस डायग्राम में हम या प्रीवियस डायग्राम में जो हम यूज कर रहे हैं, तो एक्स इज रिप्रेजेंट मल्टीप्लिसिटी ऑपरेशन
and plus and minus is addition and subtraction operation. Okay, so we have a 8 instruction. ठीक है, if we are talking about individually for 2 statements. ठीक है, statements क्या थे हमारे A and B के लिए 4 इंस्ट्रक्शन थे, like L1 multiply L2 plus L3 multiply L4. B के लिए क्या था, L1 multiply L2 and L3 multiply L4. ठीक है, तो A contain 4 इंस्ट्रक्शन, B contain 4 इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डुअल प्रोसेसर का यूज कर रहे हैं. तो डुअल प्रोसेसर का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे, इनके लिए हम 2 प्रोसेसर्स का यूज करेंगे. ठीक है, तो जो हमारे इंस्ट्रक्शंस थे ए एंड बी के, हम उनको पैरेलली एग्जीक्यूट करवाएंगे. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ए एंड